Hello, welcome to this physics video. In today's video, we are going to learn over here if different cells are connected in series. So what will be the equivalent EMF? So for example, I'm going to suppose over here, these are the two cells which are connected in the series combination. So series is what in which the positive terminal of one is connected with the negative terminal of the other cell. So you can say over here, this is the first cell which is E1. It's one terminal, it is positive. So its positive terminal, it is having that point which is X, and this negative terminal, so that it is having that point Y, and with this Y point, that the positive of the second cell is connected. Okay, so thus the positive of second and negative of first is connected to each other. This is going to be the series combination. Now the first cell is having its internal resistance is R1, while the second cell is having its internal resistance is R2. So over here, that due to this combination of the cell, let I is the current which is flowing out. So I current, it is coming out. So direction is indicated over here. So it is going out from the negative and it is coming to that going out from the positive and coming to that negative terminal. Okay, so we want to find how much will be the equivalent EMF of this combination of the cell in which there are the different EMFs and different internal resistances. So yesterday's topic we did that also for identical cells. Okay, now over here I am going to replace this one with this single cell. Okay, so this is a single cell which is having the same EMF as this combination. Therefore this single cell we call it is as equivalent EMF, and its internal resistance that will be equivalent to the combination. So therefore this is R equivalent. So this single cell I'm going to place it between the 2 points which is X and Z. Okay, X and Z. So therefore now let us suppose over here that the potential of X, because this X is connected with that positive terminal, तो इसलिए हमारे पास जो potential of X है let it is Vx. ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, X का पोटेंशियल, इस पॉइंट X के ऊपर कितना पोटेंशियल है Vx, और इस Y के ऊपर कितना पोटेंशियल है, इट इज Vy, एंड पोटेंशियल एट Z क्या है मेरे पास, Vz. ओके, सो दस आई हैव सपोज ओवर हियर कि मेरे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक्स के ऊपर, वहाँ पे पोटेंशियल Vx, ये Vy और ये Vz. ठीक है, नाउ ओवर हियर ये जो फर्स्ट सेल है, सेल के दो टर्मिनल हैं, एक एक्स के साथ जुड़ा है, दूसरा वाई के साथ जुड़ा है, लेकिन एक्स वाला टर्मिनल क्या है, हाई पोटेंशियल पर है, और वाई वाला जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल पर है. तो इसलिए दोनों के बीच में क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस बना. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस फर्स्ट सेल, ठीक है, तो जो मेरे पास फर्स्ट सेल है उसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस बना, दिस इज Vxy is equal to that of potential difference at X minus potential difference of Y. This is the potential difference across E1, and if I will write this potential difference across this E2, तो जो मेरे पास E2 सेल है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, इसके दो टर्मिनल के बीच में. ठीक है, तो इसलिए इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो Y के साथ है, नेगेटिव टर्मिनल Z के साथ है. तो इसलिए जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है Y और Z के बीच का, दैट इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Y माइनस पोटेंशियल ऑफ Z. ठीक है, दिस इज ओवर देयर दैट पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वी आर आल्सो नोन विद दैट वन, जो सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, हाउ डू वी राइट इट, कैसे लिखा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से क्या होता है, IR फैक्टर कम होता है. दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो we have already did this one in our starting topics. ठीक है, now look up over here, इन दोनों सेल को हटा करके मैं क्या कर रहा हूँ, X और Z के बीच में एक सिंगल सेल यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसके भी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा,
तो इसका एक टर्मिनल x के साथ है, दूसरा z के साथ है, तो इसलिए क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्विवेलेंट जो हमारे पास सेल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस this cell which is having its EMF E equivalent. So it is equal to potential at X minus potential at Z, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। Now from the definition I am going to note down कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको EMF में से IR फैक्टर यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें से जब ये करंट जा रहा है तो वहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए अगर उस वोल्टेज को इस ईएमएफ से कम कर दें तो वो टर्मिनल वोल्टेज बन जाती थी। सो देयरफॉर हियर दिस हाउ कैन आई राइट, सो दिस वी एक्स वाई जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, सो दिस इज इक्वल्स टू दैट ऑफ E1, क्योंकि ये फर्स्ट सेल की बात हो रही है तो इसकी EMF E1 है और इसमें से करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में से, तो इसलिए क्या बन गया IR1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट सेल लिखा मैंने, ठीक है। नाउ सिमिलरली जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेकेंड सेल के लिए क्या बन जाएगा तब, तो मेरे पास जो दूसरा सेल है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी EMF कितनी थी E2, तो इससे वो वोल्टेज जो इसके अंदर ड्रॉप हो रही है तो करंट कितना गया I इसमें से, ठीक है, और ये R2, तो IR2, ठीक है। सो दिस इज दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस सेकेंड सेल। एंड इफ आई विल राइट फॉर दिस इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, तो वी एक्स जेड इज इक्वल टू दैट ऑफ ई इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई, तो सेम करंट ये देगा जितना कॉम्बिनेशन देता है, सो इट इज आई आर इक्विवेलेंट। ओके, दिस इज ओवर है। सो दिस इज दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिटन फॉर दैट एवरी सेल, ठीक है। नाउ जस्ट लुक ओवर है, ये जो मेरे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था इस इक्विवेलेंट सेल का एक्स और जेड के बीच में, हाउ वी कैन राइट इट एज, ठीक है। तो इसको लिखा गया था वी एक्स जेड को कैसे लिखा गया था, वी एक्स माइनस वी जेड, ठीक है, ये लिखा गया था हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था। नाउ ओवर हियर इफ आई विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द पोटेंशियल ऑफ वाई, इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर ये वाई का पोटेंशियल यहाँ पर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो आई विल गेट दैट वी एक्स माइनस वी वाई प्लस वी वाई माइनस ऑफ वी जेड, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने क्या किया, जो पोटेंशियल ऑफ वाई है वो ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, सो ओवरऑल दे विल कैंसिल एंड आई विल गेट द रिवर्स स्टेप। ओके, नाउ यू विल चेक दैट जो वी एक्स माइनस वी वाई, what was that one, so check it over here, vx minus vy, it was the potential difference between x and y, ठीक है। तो इसको हमारे पास क्या लिखा गया था, it was vxy plus vy minus vz, it was the potential difference between y and z, so it is vyz, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, ठीक है। नाउ एज वी आर नोन कि ये जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थे इनको ईएमएफ के रिलेशन में कैसे लिखा जा सकता है, सो देयरफॉर दिस वी एक्स जेड इट इज ई इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी एक्स वाई, इट इज E1 माइनस ऑफ आई आर वन प्लस ऑफ E2 minus of IR2. This is over here. Now that E equivalent minus of IR equivalent is equal to now collect all these EMF, so you will get that it is E1 E2 and minus I is common, so inside it will become R1 plus R2. Okay, this we are having. Now this I have done, it is only for the combination of two cell, ठीक है, it is only for the combination of the two cell. If I will have n cells in series, for n cells in series, then what it will be, then EMF that will be added by n time and this internal resistance will add for n time. Okay, so thus I can write this one, and therefore this E equivalent
minus of IR equivalent is equal to E1 plus E2 plus so on for n cell. Okay, for n cell it will be n times plus that of sorry, it is not plus but minus I R1 plus R2 so on. How many time it is going to add? It is also going to add n times. Okay, now comparing that left hand side and right hand side. ठीक है, तो right hand side और left hand side को compare करना है. So thus we get that that implies E equivalent is equal to, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? That it is E1 plus E2 plus so on for n times. And while that I is same both side, R equivalent, so this R equivalent what it will be? It is R1 plus R2 plus so on n time. Okay, thus we get over here that if we are having the different cells in the series combination, then their equivalent EMF that will be the sum of individual EMF, and its internal resistance will be the sum of that of individual resistances. Okay, so thus we are having it is that equivalent EMF of that series combination. Now suppose over here if that we are going to connect wrongly the cells in series. ठीक है, हमने क्या किया, दोनों सेल के नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया और पॉजिटिव जो है वो किसी अदर कनेक्शन के साथ है. ठीक है, सो दिस इज द रॉन्ग कनेक्शन. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एंड दस रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसलिए मैंने सपोज किया यहाँ पे ये जो मेरे पास फर्स्ट सेल है ये इसकी ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो इसके दो टर्मिनल हैं, एक X के साथ दूसरा Y के साथ है. ठीक है, एंड सेकंड रजिस्टर जो मेरे पास सेकंड सेल है उसका नेगेटिव जो है वो हमारे पास Y के साथ कनेक्टेड है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और इसका जो हमारे पास दूसरा टर्मिनल है वो Z के साथ है, EMF E2 है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट EMF एंड रिजल्टेंट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, सो ओवर हियर व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Z. ठीक है, सो वी आर नोन ओवर देयर दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y एंड दैट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Y एंड Z. ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो नाउ ओवर हियर जो मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था उसको कैसे लिखा गया था, E1 माइनस ऑफ, जो यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं E1 जो है वो E2 से ग्रेटर है, तो इसलिए E1 की EMF मतलब फर्स्ट सेल की EMF ज़्यादा है, तो इसलिए जो करंट होगा दैट विल बी ड्यू टू दिस E1. ठीक है, सो लेट दिस करंट इज I. ठीक है, तो ये I करंट हमारे पास यहाँ पर इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आया. सो ओवर हेयर यहाँ पर क्या हो गया कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उस फर्स्ट सेल का दैट इट इज E1 माइनस ऑफ IR1, उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, प्लस जो सेकंड सेल है तो सेकंड सेल की तो ये क्या किया रिवर्स में जोड़ा है, तो इसलिए आपने क्या करना है इसकी EMF नेगेटिव लेनी है. सो इट इज माइनस ऑफ E2 एंड माइनस ऑफ दैट IR2. ठीक है, तो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इट इज IR2 फैक्टर. So over here E1 minus E2 and negative is common over here in these two cases, so minus I, and inside it is R1 plus R2, so it is equal to that potential difference between X and Z. So this potential difference between X and Z, so it is equal to E equivalent minus of I R equivalent. Okay, so therefore comparing we are getting E equivalent, it will be E1 minus of E2, and while this R equivalent it will be R1 plus of R2. So thus we come to know over here if by chance we are going to connect the one of the cell in a wrong way in the series combination, so its EMF get reduced. Okay, so thus we will have this resultant EMF will be E1 minus E2, and that resultant internal resistance it is going to add whether they are correctly connected or they are wrongly connected. So in both case equivalent resistance will add. Thank you for watching.